Hello everyone, we're going to look at some more commands in Linux. So the first command is the grep command. The grep command is used to find a certain pattern within a given file. So basically what it does is that आपके पास एक बड़ी फाइल है and उसमें बहुत ज़्यादा text है, there are thousands of line in it and आपको कोई particular word, particular line, particular pattern उसमें से ढूंढना है जो आपके लिए useful है. तो you won't keep searching within a file, okay? So for that purpose we have this grep command. And trust me, within huge organizations as well, currently they're running certain processes and those processes generate some log files, and grabbing certain insights out of those log files is very useful and used widely. This command is considered very important. Let's look how it works. So if I do ls in this and I have, let me do cat grep file. Okay, so this is a file, normal file, which is having 4 lines. And suppose I want to find that how many times is the word hell coming in it. Okay, so if I do grep hell, and the syntax of this command is first we write grep, then we write the pattern which we want to search, and then we write the file name within which we want to search. Okay, so now if I enter grep file, and you can see it has highlighted the area where the hell is coming. Okay, and suppose you have to search for hello. Okay, so it is just printing me where hello is present. Okay, this is how normally grep works. Now there are a lot of options related to grep. Let's look at each one of them individually. So the first one is the dash c option. तो ये क्या करता है कि आपका बेसिकली जित जो भी आपका पैटर्न है जो आप इसमें सर्च कर रहे हो वो कितनी बार अकर कर रहा है ये वो प्रिंट कर देता है. तो सपोज आई डू grep dash c and if I search my pattern in my current file, so see it is giving 3. तो हमें पता है कि हमारा वो वर्ड आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 3 टाइम अकर कर रहा है, 1 2 and 3, and उसने 3 प्रिंट किया. So this is the basically the dash c option. The next is dash I option. Dash I means ignore case. So suppose आपको ये वर्ड यूज करना है बट आपको दोनों चीजें इंक्लूड करनी है कि चाहे वो कैपिटल हो या वो स्मॉल हो, मुझे दोनों आउटपुट चाहिए. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंप्लीट कैपिटल एंटर किया है बट मैं इसको ग्रैब कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं बिना डैश आई के कर रहा हूँ तो यू कैन सी कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा, बट इफ आई डू इट विद डैश आई यू कैन सी हमारे तीनों आउटपुट हमें मिल रहे हैं. सो दिस इज द यूज ऑफ डैश आई option. The next option is the dash n option. Dash n option basically gives the line number a call along with the printing. So ये प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम स्मॉल एल में कर देते हैं एंड यू कैन सी यहाँ स्टार्टिंग में 1 2 and 3 प्रिंट हो गया. दिस इज द यूज ऑफ डैश एन ऑप्शन. द नेक्स्ट ऑप्शन इज द डैश डब्ल्यू. सो डैश डब्ल्यू क्या करता है कि बेसिकली आपका आपने जो वर्ड सर्च किया है वो किसी बड़े वर्ड का पार्ट भी हो सकता है. जैसे आप कह सकते हो कि हेल जो है आपका हेलो में भी इंक्लूड होता है. सो अगर मैं नॉर्मली इसको ग्रैब करता हूँ तो यू कैन सी मेरा हेलो वाला हेल भी पैटर्न मैच हो रहा है. बट सपोज आई डू नॉट वांट कि मेरा बिग वर्ड में जो स्मॉल वर्ड मेरा पैटर्न है वो इंक्लूड हो. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट द डैश डब्ल्यू ऑप्शन, and now if I'll search you can see only one occurrence where the word is a complete word and not a part of a big word. वो वाला हमारा pattern print हो रहा है. So this is the main use of dash w. The next is dash o. तो dash o क्या करता है हमारा कि dash o basically हमारा सिर्फ जो वर्ड हमने सर्च किया वो जहाँ जहाँ मिलेगा उतनी बार वो सिर्फ वर्ड वर्ड प्रिंट कर देगा, वो फुल लाइन नहीं प्रिंट करेगा. सो यू कैन सी 3 टाइम्स अकर कर रहा था, उसने फुल लाइन नहीं हमें दिखाई कि कहाँ कहाँ कैसे अकर कर रहा है. इट जस्ट प्रिंटेड कि यस 3 टाइम अकर कर रहा है. सो दैट इज ऑल अबाउट द डैश ओ ऑप्शन. द नेक्स्ट ऑप्शन इज द डैश आर ऑप्शन. ओके, सो डैश आर ऑप्शन का यूज़ क्या होता है कि बेसिकली सपोज आपको कुछ सर्च करना है एक पैटर्न बट यू डू नॉट वांट टू सर्च इन अ गिवन फाइल. ओके, आप चाहते हो कि वो किसी फोल्डर पे आप फाइंड करो और उसके अंदर जो जो फाइल्स हैं एंड उसके अंदर अगर और सब डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर कुछ फाइल है. सो कंप्लीट मुझे इवन कोई भी अंडर कोई भी फोल्डर या डायरेक्टरी हो मुझे कंप्लीट आपका फाइंड करके दे दे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट किस किस फाइल में हो रहा है. तो वहाँ पे मेरा डैश आर ऑप्शन यूज़ होता है which is also called the recursive option. Okay, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करता हूँ मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ. लेट्स से
grep out करके, एंड इफ आई cd इन दिस grep out, एंड यहाँ पे मैं पीछे से हमारी एक grep फाइल जो थी उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, एंड यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ mkdir save folder 1, एंड इफ आई डू cd folder 1, अब यहाँ पे भी मैं सेम हमारी grep फाइल को, एंड नॉट cd, कॉपी कर देता हूँ अगर मैं grep फाइल को यहाँ पे भी, एंड अब मैं बैक आ गया हूँ अपने grep आउट में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्डर है, उसके अंदर भी एक फाइल है एंड एक फाइल है सिंपल। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल grep करूँ, grep, एंड इफ आई डू से द माई पैटर्न, एंड इफ आई डू स्टार, स्टार का मीनिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टार बेसिकली मीन्स एवरीथिंग, एवरी फाइल प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। सो अगर मैं बिना डैश आर के इसको सर्च कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि वो बता रहा है मुझे कि फोल्डर 1 मेरा डायरेक्टरी है, सो उसके अंदर वो नहीं जा रहा है, एंड एक फाइल प्रेजेंट है दैट इज ग्रेप फाइल, उसको वो सर्च कर रहा है एंड उसमें से पैटर्न उसने सर्च करके दे दिया। बट सपोज इफ आई ऐड माई डैश आर ऑप्शन विद इट, एंड नाउ इफ आई सर्च, यू कैन सी वो फोल्डर 1 में भी एंटर कर रहा है एंड उसके अंदर जो फाइल प्रेजेंट है उसके अंदर हमारा पैटर्न भी सर्च कर रहा है। तो यू कैन सी कि दिस डैश आर ऑप्शन इज रियली वेरी हेल्पफुल एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ यूज केसेस। ओके, so this is all about grep command. There are other options to this command also which you can check by doing grep double dash help as I told. तो यहाँ पे बहुत सारे options हैं, मैंने मेन कवर कर दिए हैं, एंड इफ़ यू वांट टू लुक एट अदर्स एज वेल तो आप यहाँ पे हेल्प ऑप्शन लेके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। The next command or symbol you can say is the pipe symbol. तो पाइप सिंबल का यूज क्या होता है? इट इज यूज फॉर कनेक्टिविटी। ओके, सो सपोज आपके पास दो डिफरेंट कमांड है एंड आप चाहते क्या हो कि आपकी एक कमांड का आउटपुट बिकम्स द इनपुट टू माय सेकंड कमांड। ओके, अब उसके लिए आप ये तो नहीं करोगे कि आप पहले फर्स्ट कमांड रन करो, आप वेट करो वो रन हो जाए, फिर उसके बाद उसको उसका आउटपुट आप किसी फाइल में डालो, देन उस फाइल को रीड करो और फिर उस पर सेकेंड कमांड चलाओ। ओके, सो दैट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। ओके, तो उसको शॉर्ट करने के लिए वी हैव द पाइप सिंबल। पाइप सिंबल करता क्या है? वेरी इजी, वो बस हमारा ग्रेप हमारा एक फाइल का आउटपुट दूसरे फाइल के लिए इनपुट की तरह एक्ट करता है। सो लेट्स जस्ट लुक एट हाउ ये यूज होगा हमारा। लेट्स गो टू अ टर्मिनल। ओके, सो इफ आई डू डैश क्यू, अब मैं यहाँ पे बैक, आई एम बैक टू माई होम। Okay, this is fine, I'm back to my home, and now suppose I do say ls star, ls star में आपको दिख रहा है, और you can say just simply ls। okay, so ये हमारा ls हो गया। now ls के साथ मैंने अपना लगाया pipe symbol, एंड मैं यहाँ पे एक और ls करना चाहता हूँ जो कि सिर्फ हमारा सर्च करे कि mkv कमांड्स है कि नहीं। सो यू कैन सी इसमें क्या किया उसने, पहले ls में सारी फाइल्स हमारी दिखा दी और दूसरे ls में उसने सिर्फ mkv वाली डॉट mkv फाइल से एंड होने वाली उनको फाइल्स को ले लिया। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल इज सपोज वी नो वी हैव अ हिस्ट्री कमांड, जो सारी कितनी भी कमांड्स हमने रन की है पीछे वो सब कमांड्स का वो दे देता है हमें आउटपुट। ओके, सो सपोज मुझे हिस्ट्री कमांड में आई आई हैव टू जस्ट फाइंड कि मेरा से grep कमांड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हिस्ट्री grep एंड आई कैन grep द वर्ड, एंड आप देख सकते हो कि मेरे सारे जहाँ जहाँ मैंने grep यूज़ किया था वो सारे आउटपुट मुझे एक बड़ी सी अराउंड 1300 हिस्ट्री ऑफ कमांड्स में से अराउंड 50-60 कमांड्स मेरे को मिल गई है। सो दिस इज हाउ हमारा एक पैटर्न यूज हो सकता है। तो पहले हिस्ट्री ने हमें 1300 लाइंस दी आउटपुट, उसमें से ग्रेप ने उस 1300 लाइंस को इनपुट लिया एंड देन उस पर ग्रेप कमांड चलाया एंड हमारा आउटपुट आ गया विच इज़ अराउंड 20-30 लाइंस। ओके, सो सपोज इसी की तरह हम कुछ और भी कर सकते हैं। सो grep suppose I have to search for mkdir, तो you can see mkdir कमांड हमारा कहाँ कहाँ कर हो रहा है वो दिख गया। सो दिस इज हाउ हमारा पाइप सिंबल यूज हो सकता है। सो मेन यूज वेरी इजी, output of one file goes as an input to another. Now another good point which you have to take care in this is कि आपका पाइप कितनी भी बार यूज होता है, ये नहीं है कि एक कमांड आप रन कर रहे हो तो उसमें वन टाइम ही आप यूज कर सकते हो। सपोज प्रीवियस एग्जांपल में ही आपने ग्रैब कर लिया mkdir और आपके पास ये 10-15 लाइंस आ गई, बट सपोज इसमें से भी आपको ग्रैब करना है कि जहाँ जहाँ abc आ रहा है मुझे सिर्फ वही चाहिए, आई कैन अगेन पुट अ पाइप एंड अगेन डू grep abc, एंड यू कैन सी अब मेरा आउटपुट का आउटपुट आ गया एंड दिस इज
जहाँ पे सिर्फ एबीसी है। सो मैंने एक पहले सिर्फ एम के डी आई आर, पहले हिस्ट्री प्रिंट किया, देन एम के डी आई आर ग्रेप किया। अब उतने छोटे से आउटपुट में भी मैंने एबीसी ग्रेप कर लिया। तो इससे मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ मैंने एबीसी फोल्डर को मेक किया है या उससे रिलेटेड कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट किया है। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ आर पाइप सिंबल, एंड यू कैन क्लियरली सी इट इज़ वेरी यूजफुल। ओके, सो अब छोटी मोटी थोड़ी बहुत और कमांड्स हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़ केस की होती है। सो सपोज आपको कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, सो टच कमांड इज द कीवर्ड। इफ आई डू ls, आई एम एट माई होम पोजिशन, ओके, यू कैन सी, एंड इफ आई डू टच फाइल वन, एंड इफ आई डू नाउ ls, यू कैन क्लियरली सी कि हमारा फाइल वन नाम से एक सिंपल फाइल क्रिएट होगी। सिमिलरली आप फाइल टू क्रिएट कर लिया, एंड इफ आई डू ls, तो यहाँ पे फाइल टू भी क्रिएट होगी। सिंपल बेसिक एम्प्टी फाइल, अगर आपको चेक करने की एम्प्टी है कि नहीं, आप कैट करके देख सकते हैं कुछ आउटपुट नहीं है। सो बेसिकली दिस इज एन एम्प्टी फाइल। ओके, सो ये आपका टच कमांड था। नेक्स्ट कमांड इज द diff कमांड। सो diff कमांड का भी बहुत अच्छा यूज केस होता है जब भी हमारी कोई लार्ज फाइल्स है, एंड सपोज आपके पास दो फाइल्स हैं एंड बोथ फाइल इज हैविंग सम टेक्स्ट। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड कि उन दोनों टेक्स्ट फाइल्स में से डिफरेंस क्या है टेक्स्ट का। ओके, कि किसी में सपोज देर इज 50 लाइन्स इन वन एंड देर इज 51 लाइन्स इन अदर, एंड उसमें 50 लाइन सेम है, एक लाइन एक में अदर एक डिफरेंट है। सो डिफरेंट लाइन कैसे प्रिंट होगी, वो हमारा डिफ से होगा। तो उसके लिए मैंने अपने होम पे दो फाइल्स क्रिएट कर लिए, diff वन एंड diff टू। ओके, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इनका कंटेंट क्या है। सो इफ़ आई डू कैट diff वन, यू कैन सी यहाँ पे 4 लाइन्स है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड इफ़ आई शो यू कैट diff टू, यहाँ पे 5 लाइन्स हैं, एंड आप देख सकते हो कि फर्स्ट 4 लाइन्स जो हैं वो सेम है मेरी, सिर्फ फिफ्थ लाइन डिफरेंट है। ठीक है, अभी ये मैंने सिर्फ 4 to 5 लाइन्स की फाइल्स में आपको दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बेसिकली इन जनरल यूज केस एंड रियल टाइम यूज, आपकी फाइल्स होती हैं लैक्स ऑफ लाइन्स वाली फाइल्स भी होती है, वहाँ पे भी आप डिफ करके बहुत ईजिली अपना काम आसान कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ आई डू diff वन, मेरी फाइल वन हो गई है, diff टू ये फाइल होगी, एंड यू कैन क्लियरली सी वो बता रहा है कि फर्स्ट फाइल में कोई भी डिफरेंट लाइन नहीं है और सेकेंड फाइल में एक एक्स्ट्रा लाइन है जो उसने प्रिंट करके दिखा दी है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि diff इज अ वेरी यूजफुल कमांड। ओके, दिस इज अबाउट diff। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास दो हॉट कीज होती हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल जेड। तो इनका बहुत यूज करते हैं। तो सपोज होता है कि हमारी अभी ये कमांड्स आप देख सकते हो कि फाइल्स भी स्मॉल हैं तो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो रही हैं। बट सपोज आप रियल टाइम यूज कर रहे हो एंड आपके पास लंबी लंबी बिग बिग फाइल्स हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा। ओके, एंड सपोज यू हैव टू आपने एक फाइल रन कर दी, बट आप देख रहे हो कि शायद उसमें थोड़ी सी गलती होगी, मैं उसको रीरन करना चाहता हूँ। अब आप वेट तो नहीं करोगे कि 1 घंटा पहले वो फुल फाइल चले और फिर मैं उसको रुकने के बाद फिर से अपने चेंजेस के साथ लॉन्च करूँ। ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी हैव द कंट्रोल सी कमांड। ये क्या करता है, कोई भी प्रोसेस कोई भी कमांड आप रन करो एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए आप उसको कंट्रोल सी से किल कर सकते हैं, एंड किल करने के बाद आप उसको रीरन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट कंट्रोल सी। अब कंट्रोल जेड में क्या होता है, कंट्रोल जेड में बेसिकली ये होता है कि वो आप उसको स्टॉप कर सकते हो बट उसको किल नहीं करना है। तो बेसिकली एक आपने प्रोसेस रन किया एंड वो रन हो रहा है, अब उसमें अगर कंट्रोल जेड करोगे तो वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा, बट अगर आपको बाद में उसको वहीं से फिर से कंटिन्यू करना है, सो यूजिंग एफ जी कमांड यू कैन रीस्टोर दैट सस्पेंडेड प्रोसेस और उसको वापस से रन कर सकते हैं। बट कंट्रोल सी हो गया तो वो किल हो जाएगा, यू कैन नॉट रीस्टोर इट। सो इनका एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं हमारे टर्मिनल पे। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, तो अभी मैं होम पे हूँ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स जो कि बड़े फोल्डर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे grep -r करूँगा तो बहुत सारे फोल्डर्स और बहुत सारी फाइल्स में सर्च करेगा, तो मे बी थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा तो ये टाइम लेगा, एंड आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये चल रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल सी कर दूँ तो आप देख सकते हो यहीं पे प्रोसेस मेरा एंड हो गया है और किल हो गया है। बट सपोज अगर मैं इसको फिर से रन करूँ एंड मैं कंट्रोल जेड करूँ तो आप देख सकते हो स्टॉप मतलब सस्पेंडेड है। और अब मैं अगर यहाँ पे एफ जी कमांड रन करूँ तो आप देख सकते हो मेरा सेम कमांड जो मैंने पहले अब जस्ट थोड़ी देर पहले कंट्रोल जेड से स्टॉप किया था उसको मैंने रीस्टोर कर लिया है, और आप देख सकते हो वही सेम कमांड वापस अब रन करना स्टार्ट हो रहा है। तो ये रन हो रहा है।
तो हम इसको देख लेते हैं कि रन होगा नहीं होगा। बट साइड बाय साइड आपको दो और कमांड्स के बारे में बताता हूँ। पीएस कमांड होती है, पीएस कमांड का बेसिक यूज होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रनिंग प्रोसेसेस। ओके, तो आपके अभी जैसे ये कमांड रन किया, ऐसे ही डिफरेंट और भी प्रोसेस रन कर रहे होंगे बैकग्राउंड में। तो अगर आपको सारे प्रोसेस को देखना है कौन कौन से हैं, तो पीएस से हमें पता चल जाता है। अब जब पीएस रन करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस आईडी मिलता है हर प्रोसेस के साथ। ओके, एंड अगर हमें कोई प्रोसेस को किल करना है, कोई बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो हम कंट्रोल सी करेंगे तो वो डिलीट या वो स्टॉप नहीं होगा। तो हमें उसको किल करना पड़ेगा यूजिंग कमांड किल -9 एंड प्रोसेस आईडी। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा रन हो रहा है बैकग्राउंड में। तो ये रन हो रहा है हमारा यहाँ पे, इसको हम अभी के लिए स्टॉप कर देते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कुछ आउटपुट हो रहा है, तो ये रन होना स्टार्ट हो गया था। अब मैंने कंट्रोल सी कर दिया तो ये स्टॉप हो गया है। अब देखो जैसे मैं पीएस कमांड करता हूँ, यू कैन सी हमारे दो प्रोसेसेस चल रहे हैं। एक तो ये कमांड मैंने जो क्योंकि अभी रन करी है, तो ये उस कमांड का दिखा दिया। एंड एक साथ में आपका बैकग्राउंड शेल, बैश शेल, जिसमें हम सब कुछ रन कर रहे हैं, वो वाला प्रोसेस भी रन हो रहा है। एंड यू कैन सी दिस इज द पी आई डी आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ओके, सो दीज आर द पी आई डीज, दिस इज द पी एस कमांड। ना सपोज मैं एक बार हमारी ग्रेप, अब हमने ऊपर कंट्रोल सी और कंट्रोल जेड का यूज केस देखा था। अब हम इसको पीएस कमांड से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कंट्रोल सी से हमारा प्रोसेस डिलीट हुआ है, किल हुआ है या नहीं। तो सपोज अभी मैं पीएस करूं, आपने देखा दो ही मेरे प्रोसेस चल रहे हैं। अब मैंने वापस ग्रेप कमांड चलाया एंड कंट्रोल सी कर दिया। अब मैं पीएस करके देख सकता हूँ कि यस, यहाँ पे दो ही प्रोसेस चल रहे हैं मेरे। जो तीसरा प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था ग्रेप कमांड का, वो हमारा इंटरप्ट हो गया, वो हमारा किल हो गया कंट्रोल सी से। And now if I do control Z on okay, sorry, control Z I have to do. So now if I do control Z on this, ठीक है, एंड अब मैं पीएस करूं तो आप देख सकते हो तीन प्रोसेस आ गए। मेरा ग्रेप वाला प्रोसेस डिलीट नहीं हुआ है, वो शो हो रहा है, बस सस्पेंड हुआ है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई द यूज केस ऑफ कंट्रोल जी एंड कंट्रोल जेड हॉट कीज। एंड अलोंग साइड दिस, अब मुझे अगर इसको एक्सप्लिसिटली किल करना है, कंट्रोल सी तो मैं करूंगा तो होगा नहीं, क्योंकि अब मुझे उसको पहले रिस्टोर करना पड़ेगा। तो बेटर है मैं किल -9, एंड यहाँ पे मैं अपना पीआईडी दे सकता हूँ। तो मेरी ग्रेप कमांड का पीआईडी फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं 7920 है। एंड नाउ इफ आई डू पीएस, यू कैन सी किल्ड, हमारा ये वाला प्रोसेस ग्रेप वाला किल हो गया, सिर्फ दो ही प्रोसेस अलाइव है। एंड हम पीएस करेंगे, यू कैन क्लियरली सी कि हमारे दो ही प्रोसेस बचे हैं। So this is all about processes, कहाँ कैसे हम उन्हें display कर सकते हैं, how we can kill them, how we can interrupt, how we can suspend. So these all are the things related to process and commands. Okay, so that's it with this video. I hope you liked it, and stay tuned to add more festoons into your knowledge garland. Till then, keep subscribing. Thank you.